Good evening, everyone. Thank you all for joining. Hope I'm audible. Good evening, guys. Thank you for joining, guys. If you want, you can also let your friends, tell that can attend the sessions if they want, or if you're in MBA colleges, you can share it with your friends as well. No issues in that. So today, I was into an MBA college, and I told because since it's an placement season, so I will like at least have some kind of understanding about finance and how to answer in interviews. So we'll start from where we left yesterday. Okay, so we were done with balance sheet. So I'll just want a quick recap that what are the items on the balance sheet, because I just wanted to tell you how do you judge a company and what are the things that you look at. So we have liabilities and we have assets. Okay, so let's start with long-term liabilities. So let's start with equity. Okay? What are the things were in equity? Can anyone tell? Equity and fixed assets, or we will say non-current assets. Non-current assets. Can you start with first? This was equity share capital that we did. Then what is that after that? Just want you guys to tell. Preference share capital. क्या होता है equity में? We know it is reserves and surplus. That is retained earnings. And now it is called other equity. In that other equity, there is also a component called OCI, correct? और क्या था guys? Part of equity? Anyone? What is missing? Guys, what is missing in this? और कुछ बचा है? Non-controlling interest, or that is minority interest. Non-controlling interest. Okay, fine. This is from your total equity. No, I will also go to the theory part now, Manasvi, not only practical. It will be entirely in the 2 weeks or maybe probably 3 weeks. I don't know. I just said 2 weeks for understanding. So yeah, I will also go to the theory part because that is also important. Economic, no? First is financial, because this is where majority of the questions are asked in interviews, and then it is on the theory part. Yes. Okay. Equity is total equity. After that, we have non-controlling interest. Sorry, non-current liabilities. What are those? No, liabilities, non-current liabilities. How we start with? What is the first non-current? See, question asked in interviews, where do we start from? Non-current liabilities. Which is the most illiquid one? Which is the most illiquid one? Which is it? Guys, be quick. Guys, interact. Varna to kya? It is like only videos are also fine then. Jenny, I will come on to this FTA treaty. What was it? Okay, since Jenny has asked, now of PP, I'm asking non-current liabilities. I'm not asking non-current assets. Now Jenny is saying that recent FTA, which will be a rapid growth in automobile sector. So guys, if you read the news in a proper way, today आज हमने morning call पे discuss किया था. That is why I'm saying, Jenny, attend our morning calls. It is not what you say. Automobile sector rapid growth. FTA. What was the FTA treaty? It says that tariff will come from 110 to 40%. Guys, do you know which car? There are two parts in car. Completely knocked down CKD and CBU. Completely knocked down units and completely built units. So completely knocked down units पे कोई import tariff change नहीं हुआ है. CBD, that is completely built units.
जो इंडिया से डायरेक्ट, जो बाहर से डायरेक्ट इंपोर्ट होती है इंडिया में, उस पे टैरिफ कम हुआ है. 90% of the Mercedes car are CKD. There is no hike in this. Plus, अगर Jenny, अगर if you talk in numbers, only 1% of the luxury in India, only 1% luxury cars are sold. Out of the 40 lakhs cars sold in India, out of the 40 lakhs cars sold in India, only 1% is the luxury car. उसमें भी 1% में Mercedes, BMW और Audi की बात कर रहा हूँ. If we take out that Ferrari, Maserati, फिर all the sports variant, that hardly contributes 0.1% to the entire automobile sector. Lamborghini हो गई, है ना? How many, कितना बिकता है Lamborghini इंडिया में? 100. फरारी 50 भी नहीं बिकते, 20-25 बिकती है इंडिया में साल किया. एंड जैनी, यू आर सेइंग दैट इट विल इम्पैक्ट द ऑटो सेक्टर. विच कंपनी, इफ मे आई आस्क यू जैनी, which company will benefit with this treaty? अच्छा, यू आस्किंग ओनली. अच्छा, ओके. ओ सॉरी, आई थॉट यू आर सेइंग. हाँ, तो दैट ट्रीटी इज ऑफ नो यूज फॉर इंडिया. हाँ, तुमने अगर मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे ना, तो उसमें मैंने कहा था, एक टेक्सटाइल की बात की थी मैंने. टेक्सटाइल इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यूके में और यूरोप में टेक्सटाइल होता है. सो ऑल टेक्सटाइल कंपनीज इंपोर्टिंग टू यूरोप और एक्सपोर्टिंग टू यूरोप विल हेल्प. देख लेना, मेरे शॉर्ट्स में ही है, पूरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं, इट्स इन वन ऑफ द शॉर्ट्स. ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, है ना. टेल यू, इफ यू वांट टू गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट. तुम जो न्यूज पढ़ते हो और जो प्रेजेंट करते हो, हमारे मॉर्निंग कॉल्स देख लेना, द वे पीपल आर प्रेजेंटिंग. मैं सीधा उनको बोल देता हूँ कि तुमने जो एनालिसिस किया है वो प्रोबेबली गलत है. न्यूज़पेपर रीड करना एंड उसको एनालाइज करना में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. तो दैट एफटीए ट्रीटी ऑटोमोबाइल के लिए कुछ काम का है, अदर सेक्टर्स के लिए है. स्पेसिफिकली टेक्सटाइल है जो इंडिया में है. तुम गई फरारी की प्राइस 5 करोड़ की आती है, अभी 5 करोड़ की 4.5 करोड़ हो गए, 50 लाख कम हो गया. तुम लेने वाले हो? लेने वाले तुम? हाँ, लैंडमार्क कार गेम्स कुछ नहीं होगा. लाइक इवन अगर तुमने हाँ, शाश्वत एल से जो जो कोई प्रॉब्लम है ना, आज मेरा मॉर्निंग कॉल देख लेना. Day-50 का था. बस देखना क्या क्या बताया मैंने वहां पे. एक आर्टिकल भी आया था बहुत बड़ा. मर्सिडीज क्या बोलती है लैंडमार्क कार्स में भी, इट इज जस्ट एन यूफोरिया. कुछ होने वाला है नहीं लैंडमार्क कार्स में. लैंडमार्क कार्स वो सेल्स मर्सिडीज. मर्सिडीज है उनका, वो निसान है. निसान नहीं है, आई थिंक दे सेल एमजी का बेचते हैं एंड जीप बिकते हैं वो लोग. तो वैसे भी उसको कुछ फायदा होने वाला है. पीपल डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ट्रीटी. तो ध्यान रखना. ओके, आई विल मेक अ वीडियो टुमारो. मैं एक्चुअली आज नहीं बना पाया बिकॉज आई वाज नॉट इन द ऑफिस टुडे. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें कुछ भी इम्पैक्ट होने वाला है नहीं इंडियन को. जेनी, फोर्ड इज नॉट इन इंडिया ना? फोर्ड की कौन सी गाड़ी बिकती है इंडिया में? ओके, लेट्स कम ऑन टू दिस अगेन. इज नॉन करंट लायबिलिटीज. शॉर्ट टर्म बैंक लोन नहीं बोलते, शॉर्ट टर्म, सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अच्छा, उसी को हम बॉन्ड्स भी बोलते हैं, डिबेंचर्स भी बोलते हैं. करेक्ट, ये इनके डिबेंचर्स भी बोलते हैं. अच्छा, और कौन सी नॉन करंट लायबिलिटीज? लॉन्ग टर्म, सॉरी, नॉन करंट लायबिलिटी. बॉन्ड्स है, और कौन से है? याद करो, याद करो. विच आर द लिस्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज? हाँ, लीज लायबिलिटीज. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी है. ठीक है. लीज लायबिलिटीज. ट्रेड पेबल इज शॉर्ट टर्म. अब लॉन्ग टर्म यूजुअली नहीं होते हैं. अदर्स नहीं. शशांक, शशिधरन, यू हैव टू प्रेजेंट इट. व्हाट आर अदर्स? व्हाट डू यू मीन बाय अदर्स? ऐसे मत बोलना कभी इंटरव्यू में अदर्स. और क्या है? पढ़ा था कभी? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज.
So guys, you should be quick enough. So ये ना habit बना लेना. If someone asks, even if in the open forum, make an habit to type it quickly in one line. Quickly तुम क्या क्या लिख सकते हो. Siddhant, usually contingent liabilities do not come on the balance sheet. It is shown in the notes. Contingent liabilities mean ये liability हो सकता है. मैं कोई केस हार सकता हूं तो उसके लिए प्रोविजंस होते हैं. Contingent liability specifically doesn't come in the non-current liabilities. Just for your information. Okay. हाँ, यूजुअली ये होता है. नाउ लेट्स कम टू करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटी शुड बी क्विक, शुड स्टार्ट विथ ट्रेड पेएबल्स. अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन्स, द वन विच इज द मोस्ट illiquid. शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेड पेएबल्स एंड लीज लायबिलिटी आता है. शॉर्ट टर्म लीज लायबिलिटीज एक आता है. प्रोविजंस भी, यहाँ पे भी प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं. एनीथिंग एल्स? हाँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखा ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या डिफर्ड रेवेन्यू. याद रखना ये डिफर्ड रेवेन्यू. अक्रूड इंटरेस्ट बहुत कम आता है, बट आता है. यस, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट पेड. अक्रूड इंटरेस्ट. क्रेडिटर्स यही होता है सिद्धांत. क्रेडिटर्स इज पेबल्स. डोंट से कि पेबल्स और क्रेडिटर्स अलग अलग मत बोलना. यू शुड बी एबल टू आंसर दिस 6 तो भी मिनिमम यू हैव टू क्विकली. ऐसा सब क्वेश्चन अगर आ गए इंटरव्यू में तो इट शुड बी वेरी सिंपल. मतलब ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए. हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट यू कैन से. ओके, पर ये बैंक ओवरड्राफ्ट ये सब चीजें ना, यूजुअली अगर तुम बैलेंस शीट देखोगे, मैं खोलता हूँ एक बैलेंस शीट. अगर बैलेंस शीट पढ़ना है ना, टाटा मोटर्स का बैलेंस शीट लेके खोल देना. वन ऑफ द डेडलीस्ट बैलेंस शीट एवर. ऐसे सब आइटम्स है, तुमने कभी सोचे भी नहीं होगी कि ऐसे भी आइटम्स आते हैं बैलेंस शीट. अभी क्यों बोल रहा हूँ पता है? मैं, जब तुम इंटरव्यूज में जाते हो ना, व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज, एट दैट टाइम अगर तुम ऐसा कुछ अलग से बोल देते हो ना चीजें, तो यू कम इनटू इंटरव्यूअर्स इन द इंटरव्यूअर्स आईज, ओके दिस गाय हैज टोल्ड समथिंग डिफरेंट देन अदर्स. अगर मैं पूछूं बैलेंस शीट क्या है, तो तुम सब बताओगे कि क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है. द पॉइंट, you talk something about something different which is not available, yeah, something which is usually not said by other people, then probably the interviewer says, this guy is doing something. ये ऐसा बात होता है. कि टाटा मोटर्स के पहले के एनुअल रिपोर्ट देखना, अभी के एनुअल रिपोर्ट. ओके, आई विल ओपन दिस. प्रोविजंस, डिफर्ड टैक्स, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है देख लेना. ट्रेड पेएबल, लीज लायबिलिटीज. हाँ, यूजुअली अभी एनुअल रिपोर्ट खोलना पड़ेगा. व्हाट आर द करंट टैक्स लायबिलिटीज भी आते हैं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज भी आते हैं, प्रोविजंस भी आते हैं. करंट एसेट्स, नहीं सॉरी, विल स्टार्ट विथ करंट नॉन करंट एसेट्स. स्टार्ट विथ पीपी. फिर नेक्स्ट क्या आता है उसके बाद? याद करो क्या आता है. अच्छा, नाउ एसेट्स अगेन विच इज द मोस्ट इलिक्विड. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पीपी होता है. आईटी कंपनी में क्या होता है? कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस भी आता है. लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हाँ है ना लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ पे कर दिया लॉन्ग टर्म प्रोविजन. कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस के बाद क्या आता है? गाइस क्विक, क्विकली. जैनी यू कैन आंसर. जैनी आंसर दे रहे बार बार. intangible assets, yes. Others, why don't you answer, guys? No, I am telling this because इसको हमको ratios निकालना है, so I am talking all those things. Intangible, goodwill. हाँ, intangible में patents वो सब आ गए. Goodwill, long term investments, correct. Usually it isn't, तो हम investments ही बात करते हैं, assuming it's a long term investments. Okay.
Use of trademark. See, guys, if you have said intangible assets, there is no point saying that goodwill, trademark, then your patents. ये बात करने की जरूरत नहीं है. यूजुअली लोन्स एंड एडवांसेस भी एक आता है जो कंपनीज सप्लायर्स को देते हैं या प्रोबेबली तुम्हारे किसी सप्लायर को या एम्प्लॉय को देते हैं. लोन्स एंड एडवांसेस भी होते हैं. लोन्स दिए हुए हैं. या देन डीटीए, डिफर्ड टैक्स एसेट्स. दिस आर बेसिकली द इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस इंपॉर्टेंट होता है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे पीपी, वर्किंग प्रोग्रेस, इनटैंजिबल एसेट्स आर द इम्पोर्टेंट वन. खोलता हूँ मैं इसके. अच्छा, ये भूल गए तुम. कल ही हमने किया ना, सॉरी. इधर अगर तुमने लीज लाइबिलिटीज बोला है, सॉरी आई आल्सो फॉरगॉट. राइट ऑफ यूज एसेट्स. राइट ऑफ यूज एसेट्स ये भी लिखना भूल गया. इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट, लोन्स. ठीक है, ये रहा लोन्स. इन नॉन करंट में काफी सारा आता है, तो एक बार एनुअल रिपोर्ट खोल के देख लेना तुमको नॉन करंट क्या क्या होता है. अभी आते हैं करंट पे. करंट स्टार्ट्स विथ इन्वेंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स हमने उस दिन किया था. प्रीपेड एक्सपेंसेस. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी होते हैं. लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होता है. गुड वन जाए नहीं. सब एक साथ बोल दिया. सिक्योरिटी डिपॉजिट. सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को यू कैन से प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटर. प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. और इसमें ये बैंक बैलेंस इज वन एंड द सेम. ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं वन एंड द सेम थिंग, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप पे ऐसा कुछ होता है. यू कैन राइट इट. और किसी ने क्या लिखा है, वन सेकंड. डिपॉजिट्स. एक बार ना ये अदर्स देख लेना. ऑलवेज लुक एट दिस अदर्स. ये क्या होता है. ऑलवेज फाइंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है. एनुअल रिपोर्ट में जाके देख लेना उसके स्केड्यूल्स में. अदर करंट एसेट्स वेरी मच बहुत सारे होते हैं. ग्रांट्स भी होते हैं कभी कभी. या वे कभी कभी ऐसे होते हैं जो कंपनी ने किधर इन्वेस्ट किए होते हैं पैसे, विच इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बहुत सारे होते हैं. याद रखना, क्योंकि द मोर डिफरेंट आइटम यू से इन द लिस्ट, ये तो बोलना ही है, पर एट द एंड यू हैव टू मेक श्योर कि रिक्रूटर और द इंटरव्यूअर्स नोटिसेस यू कि ये क्या बात कर रहा है. Is he telling the same thing that others are saying? Or no, it will not be in the screener. Oh, 1 second. You will always get in the annual report. अभी टाटा मोटर्स का एनुअल रिपोर्ट आया नहीं है. स्क्रीनर पे नहीं दिखता वो. से महिंद्रा इज ऑल्सो द सेम. महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट होते हैं इनके. महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओके. महिंद्रा एंड महिंद्रा में जाके डॉक्यूमेंट्स में जाके गो टू योर फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिपोर्ट. Once you open your annual report, one second. Yeah, financial statements 269. 269 ये नंबर होता है. 269 is this page number is what? Yeah, 304 है, 269.
पेज नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। ओके, 269 प्लान प्रॉपर्टी ग्लांस है। ओके, दिस इज एट ग्लांस। सॉरी, यहाँ पे आया ना, यहाँ पे अदर अदर करंट एसेट उन लोग ने बोला है नोट 11। द सेम टाइम अगर मैं करंट नॉन करंट लायबिलिटीज बोलूँ तो नॉन 22। सो याद रखना 11, आई एम जस्ट राइटिंग 11, 22 एंड प्रोबेबली दिस वन अगेन 22 है, ठीक है। 11 एंड 22 वी विल फाइंड क्या क्या है। लेट्स गो टू, अभी 11 कहाँ से है, तो 11 इज, ये नंबर दिख रहे हैं 4, 5, 6, 8 हो गया लोन्स, सॉरी 11, 11 was over here. Capital advances, balances with government authorities with current access. तो ये देखिए, this was a part of current access. अदर फाइनेंशियल एसेट्स भी क्या क्या होता है, देखो अदर फाइनेंशियल एसेट्स में सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक फिक्स डिपॉजिट, जो वो भी इन्वेस्टमेंट्स ही हुए एक टाइप के, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इंटरेस्ट अप्रूव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इंटरेस्ट उनको अप्रूव है वो वाले। तो इंटरेस्ट अक्रूड गाइस ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी एक एसेट है। मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर इंटरव्यूज। ऐसे जब और 3-4 कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट देखोगे तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 22, 22 में 21 statutory rules, contract liabilities. Okay, nothing specific. This is your non-financials. Okay, there is no specific into this. Okay, कुछ स्पेसिफिक है नहीं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज। पर जैसे और कंपनीज देखोगे यू विल फाइंड मोर आइटम्स। नेक्स्ट टाइम इफ आई आस्क यू, प्रॉब्ली आई वांट समथिंग जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं बोल सकता, या तुम भी एमबीए कर रहे हो, अदर्स भी एमबीए कर रहे हो, सो यू शुड टेल समथिंग व्हाट अदर्स आर, क्योंकि ये सब तो सभी बोलेंगे। एवरीवन विल टेल दिस, प्रॉब्ली यू विल मिस राइट ऑफ यूज एसेट्स। काफी लोग, तुम भी मिस हो गए, दीज लायबिलिटीज भूल जाते हो, यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भूल जाते हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भूल जाते, कोई कोई डिफर टैक्स लायबिलिटी सभी भूल रहे हैं अभी, डिफर टैक्स एसेट्स। इट शोज दैट यू आर नॉट इन प्रैक्टिकल, तुम सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए लिख रहे हो। अच्छा, अभी इसमें से द क्वेश्चन कम्स, विच आर माय ऑपरेटिंग एसेट्स एंड ऑपरेटिंग लायबिलिटीज? कैन एनीवन टेल? ऑपरेटिंग एसेट्स एंड ऑपरेटिंग लायबिलिटीज, एनीवन? Operating assets means assets which are used in our day to day life। आंसर आंसर, ऑपरेटिंग एसेट्स कौन से होंगे? ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फर्स्ट स्टार्ट विद एसेट्स। ओके, इन्वेंटरी और लेट्स स्टार्ट विद सिद्धांत। सी गाइस, अगेन यू शुड स्टार्ट ऑपरेटिंग। पीपी रोज लगता है या इन्वेंटरीज रोज लगते हैं? रोज तुम्हारा घर लगता है, रोज इन्वेंटरीज लगते हैं? टेस्ट ऑलवेज इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज के बाद क्या आएगा? एक बार तुमने प्रोडक्ट बेच दिया, फिर क्या आता है? दिस ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं। ऑपरेटिंग डे टू डे, मैंने क्या बोला, ऑपरेटिंग डे टू डे एक्टिविटीज, कितनी भी आएंगे बट वो एंड में आएगा। ऑपरेटिंग इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, एसेट्स है ऑपरेटिंग एसेट्स। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश। गाइस, कैश इज वर्स, कैश इज नॉट एन ऑपरेटिंग एसेट, बिकॉज तुम्हारा जो कैश है, कहना से अगर तुमने लोन लिया होगा फिर भी तुम्हारा कैश बढ़ेगा, तुमने कोई एसेट बेचा होगा फिर भी तुम्हारा कैश बढ़ेगा। हाँ जैनी, प्रीपेड तुमने बोला, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड यूटिलिटी बिल्स, ऑल अ पार्ट ऑफ योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ठीक है, वो हो गया ऑपरेटिंग एसेट, दैट्स इट।
इतने ही होते हैं. ऑपरेटिंग लायबिलिटीज. चलो ऑपरेटिंग लायबिलिटीज. चलो ऑपरेटिंग लायबिलिटीज. आंसर. Which are operating liabilities? Trade payables, no. Short-term borrowing is not an operating liability. Short-term liability is not. Rupali, why would you take a loan? Advances from customer is said to be your deferred revenue. Oh, advance, any advance loan, it's a deferred revenue. Advances तुम revenue के सामने ही देते हो ना. That's it. That's it. Yes, that's it. Nothing else. Operating assets and operating liabilities. हाँ, इसमें operating assets में now specifically your PP आता है, intangible assets आते हैं if it is बस. हाँ, गुडविल भी आएंगे, सॉरी, जस्ट लिंक इट. PP, intangible assets, right of use assets. That's it. That's it. बेसिकली दिस आर योर ऑपरेटिंग जो डे टू डे में लगते हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस कि तुम ये फिक्स एसेट्स भी होते हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेशंस एज वेल. तो जब हम आरओए कैलकुलेट करते हैं ना, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट में टोटल एसेट्स कभी नहीं लेना होता है. एसेट टर्नओवर भी हमने किया, सब लोग एसेट, एवरी एसेट विल यू टेक. इज डिफर्ड टैक्स एसेट्स कंट्रीब्यूटिंग टू योर रेवेन्यू? इस लोन से तुमने एम्प्लॉय को लोन दिया है, तो इज इट कंट्रीब्यूटिंग टू योर रेवेन्यू? तुमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, इज इट कंट्रीब्यूटिंग टू योर रेवेन्यू? Things which are not contributing to your revenue or not a part of it, it is not said to be an operating assets. तो ये बहुत ज्यादा फर्क है. बट पीपल यूजुअली डोंट अंडरस्टैंड कि जब आरओए का बात आता है, रिटर्न ऑन एसेट, तुम बेसिकली सब फॉर्मूला यूज करते हो, टोटल एसेट्स. आइडियली फाइनेंस में यही बात की है, ये एसेट्स इज रिटर्न ऑन एसेट मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज एसेट्स. बट ऐसा नहीं होता, इट इज ऑलवेज द ऑपरेटिंग एसेट्स. याद रखना ये चीज, प्रैक्टिकल में काफी ज्यादा काम में आती है. टू टेल दिस, और एक होता है इसमें वर्किंग है. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? अच्छा, मुझे ना फॉर्मूला नहीं चाहिए, ये मतलब चाहिए. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? व्हाट इज मीन बाय वर्किंग? आई डोंट वांट द फॉर्मूला, आई वांट व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल. नहीं, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस नहीं आएगा शाश्वत, बिकॉज कैपिटल इट इज स्टिल मेकिंग. तुम्हारी आधी बिल्डिंग खड़ी है, इज इट मेकिंग रेवेन्यू टू यू? नो, तो नहीं आएगा. बट यू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Capital required to do your day-to-day operations. Correct. Capital required to do your operations. That is called working capital. How do you derive it now? How do you derive it? How do you derive current assets minus current liabilities? Perfect. करंट एसेट माइनस करंट, हाँ ये तो सबको पता है, हम स्कूल कॉलेज से पढ़ते आ रहे हैं. We'll tweak a bit. Core working capital क्या मतलब होता है? What is this? Now what is working capital? Core working capital में क्या फर्क है? Anyone? Trick question. Current assets minus inventory around current liabilities. Guys, now let me tell you one thing. Hey Jenny, it is not like that. Let me tell you.
बात तुमने बताया करंट वर्किंग कैपिटल, तुमने ही खुद बोला ना, कैपिटल रिक्वायर्ड टू डू योर डे टू डे ऑपरेशंस। तो मुझे बताओ, एक बिजनेस में तुमको इन्वेंट्रीज लगती है, तुमको थोड़ा पैसा आता नहीं है, तुमको थोड़े बहुत प्रीपेड एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, करेक्ट, एंड तुमको क्रेडिट मिलता है, एम आई राइट? तुमको क्रेडिट मिलता है सामने वाले से। तुम्हारे पर्सनल लाइफ में भी अगर तुम्हारा ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी चलो हाँ, ग्रोसरी शॉप है, उसमें तुम क्या रखोगे? तुम इन्वेंट्रीज रखोगे। तुम लोगों तुम जब किसी सप्लायर से इन्वेंट्री लोगे तो उनको तुम क्रेडिट पे दोगे, या वो तुमको क्रेडिट पे देगा, एंड तुम सामने प्रोडक्ट क्रेडिट पे दोगे, दैट्स इट। कोई तुमको एडवांस देगा, कोई तुम एडवांस पे पेमेंट होगा। तो गाइस, कोर वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट ऑपरेटिंग करंट एसेट्स माइनस ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज। तो इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो इट इज जस्ट इन्वेंट्री, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इन्वेंट्रीज, ट्रेड पे रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंस सब में होता है नहीं होता है, माइनस योर ट्रेड पेएबल्स, दैट्स इट, द बेसिक वन। हाँ, अगर डिफर्ड रेवेन्यू तो डिफर्ड रेवेन्यू भी माइनस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस तो प्रीपेड रेवेन्यू भी ऐड होगा। मतलब इसका क्या मतलब है, मैं बता तुमको, टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। दो ही लेते हैं एंड देयर इज पेएबल्स लेते हैं, ठीक है? मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। तुमने तुम्हारे बिजनेस के लिए 5,000 रुपीज के चॉकलेट्स खरीदे जो तुमने बेचना है तुमको, तो पैसे बाहर गए 5,000 रुपीज, कैन आई से दैट आउटफ्लो। तुमने जब सेल किए तो तुमको 2,000 रुपए आए नहीं अभी तक, डेटर्स। तो कहना से गाइस तुमको बिजनेस चलाने के लिए 7,000 रुपए चाहिए, कहना से दैट ये तुम्हारे एक्सपेंसेस नहीं है, बट ये पैसे आए भी नहीं है ना तुमको, कहना से दैट ग्रोसरी शॉप है ना, ग्रोसरी शॉप में हमेशा इन्वेंट्रीज मिले, पहले तुमको पैसे डालने पड़ते हैं, और अगर तुम्हारा B2B है तो तुमको उधार भी देना पड़ता है टू इंक्रीज योर सेल्स। तो 7,000 रुपए तो तुमको इन्वेस्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 7,000 रुपया तुमको तो इन्वेस्ट करना ही है वापस इनटू द बिजनेस। बट तो तुमको ऐसे भी लोग हैं जो तुमको क्रेडिट देते हैं। तो लेट्स से तुमको क्रेडिट देते हैं 1,000 रुपए का, मतलब तुमने जो ये इन्वेंट्रीज खरीदे 5,000 रुपए के, तुमने एग्जैक्टली 5,000 नहीं भरे, तुमने सिर्फ 4,000 ही भरे। तो व्हाट वाज योर कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो तुमने बोला डे टू डे कैपिटल रिक्वायरमेंट, and I say my day-to-day capital requirement is 6,000. Can I say that? Can I say that? तुमने ही बोला ना आंसर, वर्क तो ये होता है गाइस, वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन। तो तुमने ये बोला ना करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, सबसे गलत है आजकल की लाइफ में ये, काफी है ना, जब 50 साल पहले का फॉर्मूला ये है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज पर वर्किंग कैपिटल, कभी मत बोलना ऑपरेटिंग करंट एसेट्स माइनस ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज। एंड बेसिकली इट हैज ओनली थ्री, इन्वेंट्रीज पेएबल्स, इन्वेंट्रीज रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। बाकी सब तो डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। It is all operating assets minus operating current assets minus operating current liabilities. There is a better way to answer what is working capital. बहुत गलत है, क्योंकि द पॉइंट यू आंसर दिस, क्योंकि करंट एसेट में तुमने देखा कितने सारे चीजें आते हैं, सो मेनी थिंग्स, लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी, हैज इट एनीथिंग टू डू विथ योर रेगुलर बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटी? कैस लोन्स, तुम शॉर्ट टर्म लोन्स तुम कब लेते हो? व्हेन डू यू टेक शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब ओवरड्राफ्ट इन शॉर्ट, कब लेते हो? लाइफ में भी तुम ओवरड्राफ्ट कब लेते हो? इज इट अ पार्ट ऑफ बिजनेस? सोचो, इज इट अ पार्ट ऑफ बिजनेस? हाँ, व्हेन द बिजनेस इज स्ट्रगलिंग, करेक्ट। तो ये ऑपरेटिंग में आएगा कि हर बार लोगे तुम, हर साल लोगे? अगर हर साल तुम ओवरड्राफ्ट ले रहे हो, इसका मतलब तुम खुद ही स्ट्रगल कर रहे हो। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तुम लोन ले रहे हो एक, जस्ट टू मेंटेन योर रेगुलर एक्टिविटी, एंड वो क्या कैन आई से गाइस, इफ यू आर स्ट्रगलिंग, अभी स्ट्रगल कर रहे हो ना, फ्यूचर में जाके होगा क्या तुम्हारा ओवरड्राफ्ट, इफ द कंपनी बिकम नॉर्मल? इट शुड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर सोर्स ऑफ फंड। क्या होता है सोर्स ऑफ फंड्स? मतलब तुम बोल रहे हो कि मैं, मतलब ऐसी बात हुई गाइस,
यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम योर फैमिली टू, तुम सोचो तुम्हारे चाचा चाची है या मे बी ना फैमिली मेंबर्स है, उनसे तुम जाके लोन ले रहे हो और बोलते कि सर वो मेरे सोर्स ऑफ फंड्स है। इज इट राइट वे टू से इट्स एन ऑपरेटिंग एसेट, ऑपरेटिंग लायबिलिटी? दूसरों से पैसा ले लेके बिजनेस करना, हाँ। बट जब ट्रेड पेबल्स होता है तो ट्रेड पेबल्स तुम दूसरों का पैसा नहीं लेते, बिकॉज यू हैव अ रेपुटेशन, बिकॉज तुम्हारा मार्केट में नाम है, इसके लिए सामने वाला तुमको क्रेडिट दे रहा है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो भी सोर्स ऑफ फंड है, पर उस पर तुम इंटरेस्ट नहीं भरते। शॉर्ट टर्म लोन्स पे तुम इंटरेस्ट भरते तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नेवर से करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वी डोंट नेवर टेक शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स इन एनी पार्ट, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स इज सेड टू बी, मतलब तुम बोलोगे सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तुम जो करंट रेशियो करते हो ना, व्हाट इज करंट रेशियो? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, करेक्ट? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इन दिस, तुमने अगर सब लिया, आइडियली तो करंट रेशियो का यही फॉर्मूला है, बट तुमने अगर सब करंट लायबिलिटीज ले लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स भी ले लिए, तो अभी के लिए तो ठीक है। तुमको बोला, मैं बोलूं तुम्हारे पास जैसे कितने 7,000 के करंट एसेट्स है और तुम्हारे पास लोन 5,000 का लोन है, मतलब तुम क्या बोल रहे हो, करंट एसेट्स की अगर जरूरत पड़ी तो तुम लोन से पेमेंट करोगे? विल यू पे बाय लोन? मतलब जैसे वो सॉरी, तुमको अगर लोन पेमेंट करना है, रीपे करना है, यू विल सेल योर इन्वेंट्रीज एंड पे, रिसीवेबल्स से पे करोगे। वाज इट अ पार्ट ऑफ बिजनेस? कैन आई से यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड, लोन नहीं भरेगा, क्या करोगे बैंक लोन नहीं भरा तो? व्हाट विल बैंक डू? तुम जब क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं भरते बैंक क्या करते? क्या करते बैंक? एसेट जब्त करते हैं या प्रोबेबली तुमको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते रहते हैं, चार्जेस लगा देते हैं। क्विकली तो जब्त नहीं करते, क्विकली तो जब्त नहीं करते, जब्त करते जब तुम बैंक होते हैं, नोटिस देते हैं एक्स्ट्रा, दैट इज व्हाट। तो वो पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं हुआ। हाँ, बट करंट रेशियो में हम कंसिडर करेंगे जस्ट बिकॉज हमको कंपनी का फाइनेंशियल जानना है, बट ऑपरेटिंग एसेट्स डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लायबिलिटीज इज द बेटर वे टू जज एनी कंपनी। तो करंट एसेट में हम ऑपरेटिंग एसेट्स और ऑपरेटिंग लायबिलिटीज ही लेते हैं। एनआईएसएम की बुक में भी यही लिखा है, उसको कोर वर्किंग कैपिटल का बात किया है, इज अबाउट योर कोर वर्किंग कैपिटल। इसमें तीन ही चीजें मेजरली, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स। सो बैलेंस शीट से क्या क्या रेशियो बनते हैं, मतलब बैलेंस शीट से क्या क्या रेशियोज बनते हैं, ये जो नंबर्स है, व्हेन यू लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ अ बैलेंस शीट, द फर्स्ट स्ट्रेंथ लुक्स एट डेट टू इक्विटी रेशियो। कितना होना चाहिए डेट टू इक्विटी? व्हाट शुड बी द डेट टू इक्विटी रेशियो आइडियली? हाँ, लेस देन वन और वन इज ऑल्सो फाइन, लेस देन वन इज बेटर, वन इज मिनिमम शुड बी वन। ओके, फर्स्ट है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो तुम्हारा डेट और इक्विटी आ गया। ओके, फिर देन बैलेंस शीट पे जो रेशियोज बनते हैं, देन इट इज योर करंट रेशियो, जो था करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, इट शुड बी मोर देन टू, शुड बी मोर देन टू। फिर आता है क्विक रेशियो, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। व्हाई डू यू माइनस इन्वेंट्री? बिकॉज इट इज द मोस्ट इलिक्विड आइटम, थोड़ा और स्ट्रिंजेंट हो जाता है। तो कहना ऐसे गाइस, करंट रेशियो क्विक रेशियो से ज्यादा ही होगा, सॉरी, क्विक रेशियो करंट रेशियो से ज्यादा होगा कम होगा? क्विक रेशियो टू से ज्यादा होगा, टू से कम होगा? आई विल ऑलवेज बी लेस, हाँ, विल ऑलवेज बी लेस, क्योंकि करंट एसेट्स ही कम हो गया है, बेस उतना ही है, बेस उतना ही है, बट करंट ऊपर का न्यूमरेटर कम हो गया है, तो ऑब्वियसली रेशियो विल डिक्लाइन।
and there is cash ratio. Cash ratio is cash and cash equivalent. Cash and cash equivalents divide by current liability. Obviously वो इससे भी कम होगा and it is preferred to be 1. Okay. Current ratio, debt to equity. और कुछ है रेशियो जो बनता है इस पे? एसेट्स और लायबिलिटीज पे बैलेंस शीट में और कोई रेशियो है? बैलेंस शीट पे और कोई रेशियो है? और कुछ सिर्फ बैलेंस शीट पे, और कुछ नहीं इसके? एनीथिंग? नो. अच्छा. नाउ हाउ टू इंटरप्रेट दिस रेशियोज? ये तो तुमने बता दिया कि सर दो रेशियोज है. इसका मतलब क्या होता था? बेसिक क्वेश्चन आई आस्क्ड, गाइस, व्हाट डू यू लुक इन अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? जिसने मेरे पहले के सेशंस अटेंड किए हैं शायद से दे विल बी एबल टू आंसर, बट जिन्होंने नहीं किए हैं प्रोबेबली जस्ट व्हाट इज व्हाट डू यू लुक इन अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी? मैं तुमको मेरी बैलेंस शीट दूंगा, तुम क्या देखोगे उसमें? आई वुड लाइक टू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर. चैट पे थोड़ा अजीब होगा. इफ दिस इज आस्क्ड यू इन इंटरव्यू, या चलो एक कोई तुम्हारे डैड भी पूछते हैं, तुम फाइनेंस वाले हो, बैलेंस शीट में क्या देखते हो, कैसे बोलोगे? हाउ डू यू जज अ कंपनी बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट? नो पीएनएल, नो कैश फ्लोस, तुम्हारे पास अभी तक कुछ नहीं है. एनीवन लाइक टू अनम्यूट? Who wants to answer? Yeah, hi Rishabh, Nimisha this side. Hi, Nisha. Hi, Nisha. Yeah. Yeah, in balance sheet we just calculate the company. Uh, First of all, what we invest in the starting of the company and how can you grow the company apart from expenses and all. Fixed assets. Again, I ask you the question. Assuming this is an interview, Nimisha. Nimisha, let me ask you, what do you look in a balance sheet of a company? Answer. Can you please repeat? What do you look in a balance sheet of a company, Nimisha? We look about the amount that capital of the company, what will we invest for running the starting for the company and fixed current asset to start of the company and during the business now what are the liabilities to be performed during business, yeah, what are the assets are using to run the business. Nimisha, can you tell this to a 10-year-old guy and tell him that a 10-year-old cousin or maybe your sibling or someone, can you say this kind of answer? No, Or maybe Rishabh. the one who is just in 11th standard, assuming he knows balance sheet and PN. Can you answer? Anyone else wants to try? Good try, Nimisha. Good try. Anyone wants to answer? Yeah, Rupali. So Jayesh has clear NISM. Jayesh, will I ask you, what do you answer? What do you look in a balance sheet of a company? Jayesh, can you unmute? Jayesh, you there? Jayesh, you there? Okay, anyone else? Achha, okay, fine. Rupali, you want to answer? Yes, sir. As we know the current ratio and quick ratio, we can calculate through balance sheet. So we get to know that how much assets company have if there is any uncertainties in future. So how much company have current assets, so they can convert that asset into cash. This will we get to know through balance sheet, and also how much liability is there, means how much a company is taking loan. As according to debt to equity ratio, we get to know is company is depending on borrowed capital or equity capital. So what is the difference? Correct. Right. Partially right. Maybe 60-70% right. But still, I am not
if let's say I want to compare two companies, then fine, then good try. I think I will say a good answer, but it can be more refined. Because you are talking with an analyst, correct? You are not talking with a professor. This is not a college ki tum bas. This is what you have said is theory. Perfectly right, Propali. Now let me tell you. We see how I tell you. Guys, what do you look in a balance sheet of a company? If this question was asked to me, the purpose of asking this question is to analyze the balance sheet in relationship with another one. ऑलवेज सी तुम बोल रहे हो कि मैं कैश देखते हो, उसने कितना डेट लिया है वो देखा है, तो ये तो सब कंपनीज में सेम ही है ना. हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी बैलेंस शीट ऑफ वन कंपनी बैलेंस शीट मतलब. मैं बोलता हूँ मेरे पास 100 करोड़ के एसेट्स है, मुकेश अंबानी के पास 1 लाख करोड़ के एसेट्स है. तो डू यू मीन तो आई एम बैड एंड मुकेश अंबानी इज कंपनी इज गुड, ऐसा है रूपाली? सो यू हैव गिवन दिस आंसर. आंसर इज राइट, बट माय क्वेश्चन इज, since you have given it in a ball, I will say very vague answer, vague as in nothing specific to it. मैं एक क्वेश्चन का मतलब मुझे ये समझा कि मुकेश अंबानी के पास अगर 1 लाख करोड़ के एसेट्स हैं, मेरे पास 100 करोड़ के एसेट्स है, इट मीन्स आई एम नॉट अ गुड कंपनी. बिकॉज एज यू सेड नो कंपनीज हम एसेट्स देखते हैं कंपनीज के. ऐसा तो नहीं है ना कि मैं खराब हुआ मुकेश अंबानी अच्छा है. ऐसा होगा तो सिर्फ मुकेश अंबानी अच्छा है पूरे इंडिया में. So the question or the purpose of asking this question is, how do you analyze the company? The balance sheet तुम analyze कैसे करते हो? अभी now Jayesh has said that sir, I am not good at analyzing balance sheet. Rather only two guys have answered, so I'm assuming कि others को they are not confident of answering. या probably answer नहीं करना है. Now let me ask you, we are Indians, right? Can I say we are good at judging people? We are good at judging people. Now just imagine you go through a mall. Okay, you are going in a mall, you're maybe roaming in a mall. You see one person and तुम बोलते अरे इसके पास बहुत पैसा है, दिखता है कि इसके पास बहुत पैसा है. What do you mean by that? तुम क्या देखते हो उसमें? ऐसा होगा ना, तो लगता होगा इज वेरी रिच गाय. क्या देखते हो तुम उसमें? यू हैव नॉट जस्ट तुम बाहर वो देख रहा है, वो जा रहा है, क्या देखते हो? उसे मैंने बोला था क्लोथ्स एसेसरीज. मनीषा से तुमको कैसे पता उसका कितना पैसा है? खुद पता जेब में कितना पैसा है. जस्ट random guy or random girl in the mall you see and you think he or she is rich. How do you assume that he is rich? Clothes, accessories, correct? ऐसे अगर तुमने उसकी कोई गाड़ी देखी होगी तो एसेसरीज में वॉच भी आया, हाँ क्लोथ्स भी आए, शूज भी आए उसके. कैन आई से दैट? जैनी हाउ डू यू नो इज लाइफ स्टाइल मतलब वही समथिंग दैट हैज वैल्यू ना. लाइफ स्टाइल को कुछ वैल्यू है. तुमको मुझे देख के समझते मेरी लाइफ स्टाइल क्या है. हाँ, समथिंग दैट हैज वैल्यू. घड़ी, क्लोथ्स, वॉच, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड वॉच, ब्रांड गाय, ब्रांडेड कार, समथिंग लाइक दैट. So let us say all this belong. वो ना उसके पास अभी लेट्स से गाड़ी 1 करोड़ की है, वॉच 2 लाख का, 3 लाख का वॉच है, क्लोथ उसने कुछ 50,000 के पहने. तो अज्यूमिंग एवरीथिंग कम्स एट 1 करोड़ 50 लाख. ठीक है, उसके पास वो 1 करोड़ 50 लाख के एसेट लेके घूम रहा है. इज ए रिच? इज ए रिच? करेक्ट है ना. 1 करोड़ 50, 1 करोड़ की गाड़ी है, 4 लाख का घड़ी है, 1-2 लाख के कपड़े रहेंगे, शूज रहेगा उसका 1-2 लाख का, नाइकी का कोई ब्रांडेड शूज है. Then all this comes to 1 lakh. He's a rich guy? Practically yes. But अगर मैं बोलूं हाँ, फ्रॉम दिस वी कैनॉट डिफाइन. बट जैनी एक तो परसेप्शन तो बनता है ना कि इसके पास पैसा है, वरना 1.5 करोड़ के इसके पास आए कहां से? 1.5 करोड़ के एसेसरीज इसके पास आए कहां से? फर्स्ट अजम्पशन इज रिच. क्या तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने 1 करोड़ 50 लाख में से सिर्फ 50 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब खुद के दिए है, बाकी 1 करोड़ पूरा डेट है.
Now he's rich. Now is he rich? Not rich. Suddenly your perception changed. अच्छा, अगर मैं उल्टा करूं तो ये 1 करोड़ लू और दूसरा 50 लाख लू तो अभी नाउ इज रिच. 1 करोड़ खुद डाले, 50 लाख का ही लोन है. नाउ इज ही रिच? अभी यस ना. 1 करोड़ खुद का है, 50 लाख का ही लोन है सिर्फ उसका. मतलब 1.5 करोड़ में 1 करोड़ तो उसकी का है. तो गाइस तुमने पता है यहाँ पे क्या एनालाइज किया? व्हाट डिड यू एनालाइज? डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट टू इक्विटी रेशियो. So company में when you say, the first thing that you look in any company is the assets of the company and how are they financed by. How are they financed by. अच्छा, ये इक्विटी मतलब it is not only equity share capital. इसको हम टोटल इक्विटी बात करते हैं. टोटल इक्विटी में क्या क्या आता है? तुम्हारा अदर इक्विटी भी आता है. अदर इक्विटी मीन्स तुम्हारे पास जो एक तो खुद के पैसे है या प्रोबेबली तुमने खुद कमाए हैं. बेसिकली इज द टोटल इक्विटी. सो यहां पे तुम्हारा डेट टू इक्विटी क्या है? डेट टू इक्विटी इज 0.5. जो तुमने अभी बोला ना, लेस देन 1 होना चाहिए. डेट टू इक्विटी कितना होना चाहिए? इफ इट्स लेस देन 1 देन इट्स अ गुड कंपनी. तो यूजुअली कैन आई से लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड ये करंट लायबिलिटीज, मेजरली तुम लॉन्ग टर्म लोन्स क्यों लेते हो गाइस? डे टू डे खर्चे के लिए. 1 करोड़ का लोन डे टू डे खर्चे के लिए लेते हो या कुछ एसेट खरीदने के लिए लेते हो? फॉर एसेट्स. एंड वो एसेट से क्या करते हो? फ्रॉम एसेट से यू जनरेट इनकम. करेक्ट. सो first question, what do you look in a balance sheet of a company? Listen carefully. Sir, first thing that you look in a company is the assets of the company and how are they financed by. If the debt to equity ratio is more than 1, the company is into I will say into financial strain. And if the debt to equity is less than 1, then company is in a good financial position. Again, what we see in the company is the assets of the company and how are they financed by. If it's financed, if the debt to equity is more than 1, the company has taken too much debt, which is not appropriate. If the debt to equity is less than 1, I can say company is financially stable. अभी इससे क्या हुआ ना रूपाली, you also gave the same answer, but no, what was the difference? आंसर तुमने भी सही दिया था. I just bought data points in it. बिकॉज अभी मुझे तुमको वापस पूछने की जरूरत नहीं कि कौन सा कंपनी अच्छा है. तुमने सीधा बता दिया कि सर अगर मैं 2 कंपनी देख रही हूँ, दोनों का अगर एसेट डेट टू इक्विटी एक कंपनी का ज्यादा है, इसका मतलब वो थोड़ा फाइनेंशियली अनस्टेबल है. इसका डेट टू इक्विटी का मैं इज फाइनेंशियली स्टेबल. दैट्स इट. सो व्हाट हैज हैपेंड? यू हैव आंसर्ड मी दिस पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. यू हैव आंसर्ड मी दिस पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट स्ट्रेट अवे. ये हो गया तुम्हारा एसेट. अभी गाइस तुमने मुझे देखा या चलो किसी को देखा, तो मैं बोलता कि मेरे पास है 1.5 करोड़ के मेरे पास एसेट्स है, ठीक है ना गाइस. मेरा डे टू डे में क्या चल रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मैं पैसा कमा रहा हूं कि नहीं. क्या पता चले मैं खाना खा रहा हूँ, वो भी क्रेडिट कार्ड पे खा रहा हूँ. हो सकता है ऐसा. मतलब मैंने ना ताज से खाना मंगाया, लेट्स से 10,000 के 2 वो डिशेस मंगाए मैंने. पता चला मैं क्रेडिट कार्ड पे लोन ले लेके भर रहा हूँ उसके पैसे. ऐसा हो सकता है. मैंने गाड़ी में मेरा पेट्रोल फुल किया, बट पेट्रोल के पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. तो क्या मेरा घड़ी बेच के दूंगा? मैं घड़ी बेच के पेट्रोल का पैसा करूंगा? Okay, Rupal is asking, is it good for the company to rely more on equity rather than debt? Is there any impact if the company is dependent on equity capital? Rupali, so whenever we talk about equity,
It is never the equity share capital. It is always the other equity, the retained earnings. It is always the retained earnings. In a startup company, हाँ, equity share capital होता है, that is not a good sign. But in normal companies, it is always the retained earnings. एंड अगर स्टार्टअप्स में है ना, तो स्टार्टअप्स में तुम इक्विटी शेयर कैपिटल से एसेट नहीं ले सकते. मतलब तुम ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हारा ओनरशिप, मतलब घर, मतलब ऐसी बात हुई कि तुम्हारा घर है, तुमको दूसरा घर लेना है, तो तुम पहले वाला घर बेच के दूसरा घर ले रहे हो. क्या मतलब होगा इसका? डज इट मेक सेंस? तो वो बात हुई, वो तुम बोल रहे हो ना कि दस कंपनी रिलाई मोर ऑन इक्विटी. इट इज नॉट इक्विटी, डजंट मीन शेयर कैपिटल. इक्विटी मीन्स द अदर इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स. मतलब मेरे खुद के पैसे जो मैंने कमाए हैं. मतलब वरना वही बात है, अगर तुमने, क्योंकि डेट टू इक्विटी की बात की ना, मैंने क्या बोला, डेट टू इक्विटी में तुम एसेट खरीदते हो, डेट से. तो अगर तुम इक्विटी रेस करके एसेट, इसका मतलब क्या हो रहा है, वही तुम्हारा घर बेच के तुम दूसरा घर ले रहे हो. मतलब खुद का, मतलब ऐसी बात हुई कि मुझे ना, मैं मुंबई रहता हूँ, मुझे पुणे में घर लेना है, तो मुझे पता है पुणे में घर लेने का मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे मुंबई का मैं 2 BHK तो 1 BHK बेच के पुणे में घर लेता हूँ. कुछ मतलब है कुछ इसका? डजंट मेक सेंस. ओके, दैट इज द पर्पस. अब कोई मतलब ही नहीं ना, इट इज वेस्ट ऑफ थिंग. अरे मैं खुद का घर बेच के पुणे में घर ले रहा हूँ क्यों, तो और खुद जो घर ले रहा हूँ वो बेच रहा हूँ. तो यूजुअली जो स्टार्टअप्स तुम बोल रहे हो ना रूपाली, वो स्टार्टअप्स में जो इक्विटी शेयर कैपिटल यूज होता है, वो डे टू डे खर्चे के लिए यूज होता है, वो कभी एसेट खरीदने के लिए यूज नहीं होता. एंड जिस कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, यू विल नेवर सी डेट इन दैट कंपनी. बैंक विल नेवर गिव यू डेट अगर तुम लॉस मेकिंग कंपनी हो तो. Okay, once it got it, then you have to talk about the liquidity portion. Is the company able to run its day-to-day operation or not? Okay, so what is that ratio? To check the liquidity of the company, you check the current asset, current ratio of the company. And if the current ratio is more than 1, तो तुम ये नहीं बोलते मैं एसेट देखता हूँ, मैं उसके शॉर्ट टर्म एसेट देखता हूँ, लॉन्ग टर्म एसेट देखता हूँ, ऐसे नहीं बोलता है. Or you don't say we look at current assets and current liabilities. We see the current ratio of the company. If the current ratio of the company is more than 2, it means the company is in the company is in a good liquid position. If you want to be more stringent, so better we can look at the quick ratio. We can understand that company doesn't have any liquidity problem. Quick ratio more than 1.5 usually. Current ratio more than 2 means that company is better off managing its liquidity position. इसमें क्या हुआ, I have analyzed two balance sheets of the company. I have analyzed two balance sheet of the company. तो ये सब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा काम होता है. बैलेंस शीट पे ये दो रेशियोज ही होते हैं, विच इज सो मच इंपॉर्टेंट. तो आज अगर कोई कंपनी एनालिसिस कर रहे होगे ना, बैलेंस शीट देख लेना, एक डेट टू इक्विटी कितना है और तुम्हारा करंट रेशियो कितना है. और करंट रेशियो में मैंने बोला था कौन से लेना है, ऑपरेटिंग एसेट्स एंड ऑपरेटिंग लायबिलिटीज ही लेना है. डोंट टेक अदर्स, क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट्स हो गए. करंट रेशियो में ठीक है, तुम एक के लिए देख सकते हो लिक्विडिटी पोर्शन, बट अगर एसेट्स की बात कर रहे हो तो डोंट गो ऑन टू शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जीटीए. ये सब इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस. तुमने लोन्स क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन नहीं लेते तुम लोन्स पीपी या इनटेंजिबल एसेट्स खरीदने के लिए या प्रोबेबली गुडविल. गुडविल मीन्स तुम्हारा किसी एक्विजिशन करते हैं वो. डन विद बैलेंस शीट. अभी हम वापस बैलेंस शीट पे नहीं आएंगे. हम जब पीएनएल चालू करेंगे तो पीएनएल एंड बैलेंस शीट को फिर लिंक करेंगे. एंड फिर जब कैश फ्लो पे जाएंगे तो पीएनएल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो को लिंक करेंगे कि सब ये एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है. तो नेक्स्ट इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस आई विल टेल यू हाउ, व्हाट डू यू लुक इन अ पीएनएल ऑफ अ कंपनी. आज रिश्तो वी हैव कवर्ड टुडे, व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड. Day 4. क्या क्या कवर किया आज हमने. और टुडे इज Day 5 ना, सॉरी Day 4 में. सो वी हैव डन, Day 4 वाज लीज लायबिलिटीज है ना. हाँ, आरओयू भी आएगा ऑपरेटिंग एसेट में. यस देन, राइट ऑफ यूज एसेट्स.
And day 5, what we learn is analyzing balance sheet of the company. फर्क था, फर्स्ट इट वाज इंट्रोडक्शन, जो day 1 में किया इट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ बैलेंस शीट. सेकेंड में इट वाज एनालाइजिंग द बैलेंस शीट एंड important ratios and its analysis in the balance sheet. Most important part, analyzing balance sheet. Balance sheet को कैसे देखते हैं and उसमें important ratios. Ratios are just not to be found, it is to be analyzed. मतलब मैं बोलूं मेरा ROE 30% है, return on equity is 30%. Is it good? Is it good? मतलब मैं मेरी इक्विटी पे 30% कर रहा हूं. What if my competitor is doing 50%? Yes, needs to be compared with peers. So in business, in a company, ratios are never standalone. जब तक तुम किसी को कंपेयर नहीं करते, तुम ये नहीं बताते रेशियोज अच्छे हैं या नहीं. तुम जो फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो ना, तुम एक ही कंपनी का बनाते हो और बना के सर मैंने रेशियोज किए, मैंने ये किए, मैंने ऐसा फाइंड किया, वैसा फाइंड किया. मैंने देखा है काफी एमबीए कॉलेज में तुम एक कंपनी लेते हो, प्रोजेक्ट्स होते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया है. स्टेटमेंट एनालिसिस तो उसका कॉम्पिटिटर किधर है? एनालिसिस क्या किया तुमने? ROE 30%, गुड और बैड? हाँ सर गुड. तो कैसे गुड? हैव यू कंपेयर्ड इट? मतलब गाइस इफ आई टेल यू मैं और मेरा भाई है, आई एम अर्निंग 1 करोड़ पर ईयर, गुड साइन, अच्छा हूं मैं, आई एम गुड. लेट्स सो मेरा बिजनेस है, सेम मार्केट हो जैसे और एक कोई बिजनेस है, मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ फॉर द एंटायर ईयर. इज इट गुड? मतलब मैं ROE 30% कर रहा हूँ एग्जाम्पल, बट सामने वाला मेरा कॉम्पिटिटर अगर 50% कर रहा है तो आई एम नॉट गुड, मैं एक्चुअली बुरा हूँ इसमें. एंड अगर मैं 5% कर रहा हूँ एंड मेरा कॉम्पिटिटर 4% कर रहा है तो ROE ऑफ 5% इज ऑल्सो गुड साइन. बिकॉज देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज जहां पे यू कैनॉट ग्रो मोर देन अ सर्टन लिमिट. ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वाइड कंपैरिजन होता है. तो वही हम जब कंपनी एनालिसिस करेंगे, सॉरी इंडस्ट्री एनालिसिस करें, तो ये चीज भी आती है कि रेशियोज आर ऑलवेज टू बी कंपेयर, इट कैन नॉट बी टोल्ड इन सिंक. इसके लिए मैंने बोला ना तुमने डेट टू इक्विटी, स्पेसिफिकली मैंने बोला इट शुड बी मोर देन 1. उससे कम है तो सॉरी इट शुड बी लेस देन 1. इफ इट्स मोर देन 1 द कंपनी इज फाइनेंशियली weak. Himanshu is saying that we have to check whether it is because net profit margin or asset turnover. हाँ वो तो अलग है, दैट इज हिमांशु, दैट इज डू पॉइंट एनालिसिस, वो तो अलग है. बट ऑन अ बॉल पार्क बेसिस अगर ROE 30% है और दूसरे का ROE 20% है, देन यू आर गुड. बट सिर्फ ऐसे ROE 30% यू कैनॉट से सर इट इज गुड और बैड. और ऐसे तो 5% भी अच्छा हो गया. Okay, fair enough. So balance sheet is done. 5 days we have talked about balance sheet, assets. I hope you will be able to answer in the interviews अगर कुछ ऐसा interviews आंसर आता है. And hope you learn for the first time कि balance sheet को आंसर कैसे करते हैं. How do you answer? What do you see in a balance sheet of a company? Most important, huh? Most important. हाँ शाश्वत, increasing ROE is a green flag, correct. बट अभी तो सिर्फ बॉल पार्क है ना, 30% मैंने बोला है. 1 ईयर बैलेंस शीट ना, हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं बोल रहे. इट इज जस्ट तुमको एक कंपनी का बैलेंस शीट दिया 1 ईयर. हाँ देर आर वेरियस रीजन, हम उस पर आएंगे. ROE इंक्रीज के भी बहुत सारे रीजन है. तुम अगर लेवरेज पे ग्रो हो रहे हो तो दैट इज नॉट अ गुड साइन. ठीक है, तो वो भी हम करेंगे जब ड्यू पॉइंट पे आएंगे, तब वो भी हम करेंगे. जब
वी विल कंपेयर P&L एंड ROE ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट, तब वो सिर्फ रेशियोज आएंगे बार बार. हाँ, ऑन बॉल पार्क बेसिस यस जेनी, वी कैन से 25-30% इज गुड. बट अगर इंडस्ट्री में 50 तक का है तो तुम तो खराब ही कर रहे हो, तुम्हारा स्टॉक कभी नहीं बढ़ेगा. मतलब तुम जैनी ये बोल रहे हो कि यू आर रोमिंग विद टॉपर्स जिनको सबको 90% आ रहे हैं एंड तुमको 85 आया. तो 85 बुरा नहीं है, 85 अच्छा ही है. तो तुम घूम किसके रहे हो, उनके सामने क्या हो तुम. तो ऐसा होता है. ओके, है ना, बराबर ना. इफ आई टेल यू जेनी यू आर अ स्कॉलर, तुम टॉपर्स पे काउंट होते हो. तो टॉपर्स में अगर तुमको 85 आया मतलब तुम तो खराब ही हो ना उनके सामने. ऐसा होता है. तो ये सब प्रैक्टिकल होता है. बैलेंस शीट इज ऑल, फाइनेंस इज ऑल प्रैक्टिकल. इट इज, शायद से तुमको किसी ने बताया नहीं होगा कि प्रैक्टिकल चीजें बहुत ज्यादा फाइनेंस में यूज होती है. बट जिस दिन तुम ये समझ में आओ ना कि यू स्टार्ट लिंकिंग प्रैक्टिकल थिंग्स विथ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, देन प्रोबेबली यू ग्रो इन योर लाइफ. मतलब ग्रो इन फाइनेंस. आई हैव ग्रोन इन दैट वे स्पेसिफिकली. मैं हमेशा हर चीज प्रैक्टिकल लिंक करता हूँ. दैट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड फाइनेंस मच बेटर एंड डे लाइफ. तो उसमें क्या है, स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझ में आता है. यू डोंट खाली फोकट आंसर्स नहीं देते. खाली फोकट ना जस्ट ROE ग्रो हो रहा है, ROE इज गुड, करंट एसेट मैं क्या देखता हूँ, बैलेंस शीट में तो एसेट देखता हूँ, लायबिलिटीज देखता हूँ. मतलब वो तो सभी देखते हैं, तुम अलग क्या देख रहे हो. एक बेसिक था रेशो जो सबको पता था, but how to answer it in the interviews becomes difficult. Fine. Okay, guys. Have a good night. We'll see you tomorrow again. मेरे मॉर्निंग कॉल्स देखते रहना, भी अपलोड करते हैं हम लोग. ऑल्सो सी हाउ स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, तुम्हारे भी दिमाग में कुछ चला जाए. अगर इंटरव्यूज कभी आया तो तुमको भी पता चले बात क्या करनी है इंटरव्यूज में. थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस, बाय बाय.